Jai Shri Mahakal, how is everybody? Kindly turn on your cameras. Spotify ji, please focus on steading right now. We'll focus on winners later. I still can't see your faces. Spotify ji was here just for winners. He just left. Rohan ji, I'm seeing you for the first time. Are you here for the first time? No, sir, I've attended before. So you are a silent member? That's good. Kind of, sir. अभी मेरे सामने जिनल जी, सुएक्षा जी और सीमा जी आप मेरे सामने दिख रहे हो पर मेरे को दिख नहीं रहे हो. सो काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास. Today we will be learning Saturn plus Ketu. Very important conjunction. Very easy conjunction to understand. And we are doing conjunctions and I hope के conjunctions बड़े मज़ेदार हैं अंडरस्टैंड करने. अभी हम सिर्फ 2 planet conjunctions कर रहे हैं. आने वाले टाइम में हम 3 planet, 4 planet, 5 planet conjunction तक भी जाएंगे. That's what I was thinking today. लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट केतु. पिछली बार भी हम वीनस प्लस केतु जब डिस्कस कर रहे थे तो केतु के रिलेटेड बहुत सारी नई बातें निकल करके बाहर आई. इसी तरह आज हम जब सैटर्न प्लस केतु कर रहे हैं तब भी केतु के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो बाहर आएंगे. रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज केतु. दैट्स वाई द विमशोत्री इज यूजली बिगिनिंग फ्रॉम केतु. तो जितनी इंपॉर्टेंस केतु की है उतनी यूजुअली एस्ट्रोलॉजर्स उसको देते नहीं हैं. लोग थोड़ा शनि में उलझ जाते हैं, राहु में उलझ जाते हैं, सूर्य में उलझ जाते हैं, मंगल में उलझ जाते हैं, गुरु में भी उलझ जाते हैं. लेकिन केतु को जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी इंपॉर्टेंस जो मैंने पर्सनली फील किया है जब मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स से बात करता हूँ, उतनी इंपॉर्टेंस केतु को नहीं मिली है. जबकि जितनी इंपॉर्टेंस केतु डिजर्व करता है उतनी इंपॉर्टेंस कोई भी और प्लैनेट डिजर्व नहीं करता है. केतु इज व्हाट वी हैव मास्टर्ड इन आवर प्रीवियस लाइफ्स. This is a very important fact about Ketu. Ketu is what you have mastered in your previous life. The planet touching Ketu is the planet that helped you master it. Okay? The planet touching Ketu helped you to master something related to the house where Ketu is sitting. And the things related to Ketu is something which you don't need to learn in this life, but that is something which you only be reminded. Okay, that will automatically come in your head at the right time, at right moment. And then you will think like, यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को कैसे पता लग गया? That's because it's the skill that you mastered in the previous life that is just reappearing today. The impression is still there. The impression is always there. You know, the past is always with us. Okay, you cannot escape your past. I'll give you an example. So, केतु को कुछ इस तरह से समझिए. यदि आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है और वो वाटर यहाँ एक फ्लोर है उस पर गिर जाता है, स्पिल हो जाता है और वो कुछ इस तरह से एक पैटर्न बनाता है. यू लीव इट देयर, लेट इट इवेपोरेट. वो पानी इवेपोरेट हो गया, यानी कि वो शरीर आपका इवेपोरेट हो गया. शरीर ही तत्व है, जल एक तत्व है. आपके शरीर में 70% से ज़्यादा जल है. वो तत्व है, वो इवेपोरेट हो गया. दैट मीन्स यू डाइड, राइट? यू लेफ्ट द बॉडी.
Now again, when the water will spill here, the water will take the same pattern as it was before. थोड़ा सा expand होगा, थोड़ा सा right left होगा, but most of the water will take the same shape. Why? Because it knew the pattern already, but the pattern is invisible to the naked eye. You cannot see the pattern, but the pattern is there. So whenever Ketu gets activated in your Kundali, you see yourself following the invisible pattern, the invisible path that you once chose in your life. Previous life, maybe usse previous life. But today you don't know why you are following it. But you are following it. Okay, that is something about Ketu. इस चीज को याद रख लेना. I'm just locking the meeting. No one can join from now. Okay. So, I hope this is clear about Ketu. जिस भी घर के साथ केतु है उस घर को आप मास्टर कर कर आए हो, लेकिन अब ये भी याद रखना, जिस घर को तुम मास्टर कर कर आ जाते हो, अब उस घर से पार होने का टाइम है, यानी कि उस घर की कमी आपको इस लाइफ में महसूस होती है. ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट. एंड व्हेन यू आर गॉन थ्रू समथिंग यू नीड टू इवोल्यूट, यू डोंट नीड टू बी स्टक देयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अब मेरे को 5th क्लास अच्छे से करनी आ गई है, अब मैं दोबारा 5th क्लास ही करूँगा. नो, यू नीड टू इवोल्यूट, राइट? यू नीड टू लीव द 5th क्लास बिहाइंड एंड गो इन द 6th क्लास. बट इफ यू विल कीप सेइंग दैट आई हैव मास्टर्ड 5th क्लास, अब मैं 10 बार 5th ही करूँगा, तो प्रकृति तुम्हें कहेगी नहीं, यू नीड टू इवोल्यूट. सो दैट्स वाई व्हेन यू विल मूव टू द 6th स्टैंडर्ड यू माइट फील द कमी ऑफ द 5th स्टैंडर्ड. ओके, यू विल फील द कमी तो फील होगी केतु के घर की, बट यू नीड टू रियलाइज दैट यू हैव मास्टर्ड दैट हाउस ऑलरेडी, यू हैव टू इवोल्यूट फ्रॉम इट. सेम इज द थिंग विद द प्लैनेट सिटिंग विद केतु. You need to evolute from it. You need to let go of it. If you will not let go of the planet touching Ketu, that planet will cause new karmic bonds in the same older pattern, and that will cause problems in your moksha because Ketu is moksha karka. Let's understand how the Ketu will touch any planet. Will it really touch a planet or will it not? Okay, remind me to do this, but before that, let's write on two sides what is Saturn and what is Ketu. This is Saturn, this is Ketu. Saturn is सबसे पहले, शनि is कर्म कारका. Shani is Ayush Karaka, the natural Karaka for your longevity. What else is Saturn? Saturn represents your servants. Saturn represents your responsibility. आपके जिम्मेदारी कितनी है, शनि रिप्रेजेंट करता है. जिम्मेदारी 2, 3, 4 तरह की होती है. सूर्य एक अलग तरह की जिम्मेदारी रखता है, शनि एक अलग तरह की जिम्मेदारी रखता है. सूर्य की जो जिम्मेदारी है वो टोटली डिफरेंट है सैटर्न से, ऑल्दो बोथ ऑफ द प्लैनेट्स आर रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सैटर्न इज योर डेब्ट्स. नाउ दिस इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल डेब्ट्स, this is also your karmic debts. Okay, this is your debts from the past lives. Okay, सर मैंने आपसे 100 रुपया लिया था, अब मुझे आपको वापस करना है. कार्मिक डेप्ट है, चाहे वो फाइनेंसिस के वे में हुआ, इस जन्म में हो सकता है वो फाइनेंसिस के वे में ना हो, किसी और वे में हो, बट आई विल हैव टू रिटर्न दैट एनर्जी टू यू इन वन और अनदर वे. ओके,
What else is Saturn? Saturn is punishment. Saturn is cold. Saturn is chronic sufferings. Chronic sufferings, long term sufferings are given by Saturn. Okay? किसी को 3 दिन खांसी जुकाम हुआ, that is not given by Saturn. ठीक है? That is given by which planet? Short term. कौन देता है? Short term बीमारी कौन देता है? जिनल जी, you were about to say? Moon. Very good. Moon could give you a short term disease. 6th हाउस से चंद्रमा गुजर रहा था, 3-4 दिन के लिए एंटीबायोटिक खाया, आप ठीक हो गए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल. लॉन्ग टर्म पनिशमेंट्स कौन देता है? सैटर्न. शॉर्ट टर्म पनिशमेंट कौन देता है? शॉर्ट टर्म पनिशमेंट इज गिवन बाय सूर्य. ठीक है, सरकार तुम्हें कहेगी कि जी आपको फाइन लगेगा, 2 लाख रुपए का फाइन दे दो. बात खत्म होगी, आपने फाइन दिया, बात खत्म होगी. दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म पनिशमेंट. शनि कहेगा फाइन से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें होगी उम्र कैद. शनि कहेगा तुम्हें 7 साल चक्की पीसनी है. सूर्य कहेगा चक्की मत पीसो, इट्स ऑल राइट, तुम्हें चक्की नहीं पीसनी है, समझ गया मैं. अब आई कैन अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी, आई कैन अंडरस्टैंड योर स्टेटस, आई कैन अंडरस्टैंड योर अथॉरिटी. So what we can do is you help the government will help you. You pay some fine so that we can strengthen the core of the government and we can leave you. But Saturn says no, you cannot buy me. So remember, you can buy Surya but you cannot buy Saturn. You can donate to Surya, you cannot donate to Saturn. अब ये एक लाइन जो मैंने बोली है इसके बहुत मतलब हैं, और जो समझदार हैं वो इसमें से बहुत कुछ निकाल लेंगे. यू कैन डोनेट टू सूर्य बट यू कैन नॉट डोनेट फॉर सैटर्न. द रेमेडी विच इज डोनेशन विल नॉट वर्क इन द केस ऑफ सैटर्न. ठीक है, डोनेशन विल वर्क फॉर सूर्य, इसीलिए सूर्य होता है मैनेजमेंट कोटा, दैट इज गिवन बाय सूर्य. ठीक है, नहीं नंबर आए कोई बात नहीं, 4 पैसे ज्यादा दे दो, एडमिशन ले लो, दैट इज सूर्य. वी आर ओपन टू यू, यू कैन पे, वी आर ओके विद इट, वी एक्सेप्ट डोनेशंस. दैट इज सन, दैट इज नॉट सैटर्न. सैटर्न विल एक्सेप्ट सर्विस, ही विल नेवर एक्सेप्ट डोनेशन. ये शनि की खासियत है. ठीक है, शनि की रेमेडी होती है अक्सर जूते साफ करो, शनि की रेमेडी होती है कि पोचा लगा कर आओ किसी टेंपल में. ठीक है, शनि की रेमेडी होती है जो अपाहिज आश्रम है वहाँ लोगों की सेवा करो जा करके. ठीक है, जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ लोगों के कपड़े धोकर आओ. ऐसे की रेमेडीज शनि के साथ रिलेटेड हैं. क्यों? बिकॉज सैटर्न विल मेक यू सर्वेंट. सैटर्न ये सर्वेंट का कारक है ना. सैटर्न विल मेक यू सर्वेंट to make sure that you emotionally mature and your ego is killed. Without getting the ego killed, you cannot make Saturn happy. For Surya, the Surya will make your ego even more powerful while doing the remedy of Surya. हमने सोने का शतर चढ़ाया, ये जो सोने का शतर चढ़ाया में आपके अंदर एक ईगो आती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय सैटर्न, सॉरी सूर्य, एंड दैट्स द बिगेस्ट रेमेडी फॉर सूर्य. ठीक है, हम मैनेजमेंट कोटा, रहे मैं तो मैनेजमेंट कोटा में आया हूं, मैंने तो पैसे दे दिए थे, और सरकार अपनी है, टेंशन ना ले, चला लेंगे, 2-4 पैसे लगेंगे, काम हो जाएगा. दैट इज गिवन बाय सूर्य, राइट. सो द बेसिक डिफरेंस नाउ यू गॉट टू नो. व्हाट इज केतु? सबसे पहले केतु इज मोक्ष कारक. What else is केतु? केतु इज डिटैचमेंट, यानी के वैराग्य कारका. वैराग्य का कारक भी केतु है, मोक्ष का कारक भी केतु है.
What else is Ketu? Ketu is tail of something. Now, tail of something, what is tail? Tail is actually ending. Tail is end of something. Tail is end. Head is beginning. So Rahu is usually associated with the beginnings, and Ketu is usually associated with the endings. So whenever we are looking for something coming to an end, we have to see Ketu. Whenever we are looking at something which is going to begin, we have to look at either Jupiter or Rahu. Both of them are the beginnings. Jupiter is a different type of beginning, Rahu is a different type of beginning. In fact, Surya is also beginning in some way. How is it? What's the difference? The beginning of the sun is beginning of a new life. Okay, I have a question for you. Why in the first house there is Agni Tattva Rashi? There could be water, there could be, earth हो सकता था, वायु हो सकता था, जल हो सकता था. But we began from the fire. Now the science calls it Big Bang, explosion हुआ. ठीक है, हमारे गुरुओं ने कहा कि एक्सप्लोजन तो हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, बट फायर स्टार्टेड इट ऑल. And then fire was placed on something which is earth, that is Prithvi. Now from that Prithvi the fire expanded. The expansion happened with Vayu. Remember, 1, 5 and 9 is the fire signs, right? That is the place of the fire, right? 3, 7 and 11 is the place of Vayu. But do you know that 3, 7 and 11 is hotter than 1, 5 and 9? That is your Kama triangle. The Kama triangle has the maximum heat because the heat is expended by air. The heat there is actually expended by air. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैं कहूं कि यहां पर एक अग्नि जला लो और फिर मैं आपको कहूं कि इधर से हवा भी दो अग्नि को. So that वायु will actually increase the fire there. तो जितनी आपको कामा ट्रायंगल के प्रति आपके लिए आपके अंदर इनर फायर है ना, उतनी फायर आपके अंदर धर्मा ट्रायंगल के लिए नहीं है. धर्मा ट्रायंगल वाली फायर नहीं है, वो छोटी सी हीट है, हर किसी में है. हर कोई चाहता है कहीं ना कहीं कि धर्म फॉलो करना चाहिए, लेकिन कामा ट्रायंगल ऑलवेज डोमिनेट्स द धर्मा ट्रायंगल. द डे धर्मा ट्रायंगल विल डोमिनेट द karma triangle, you will be attaining moksha, because then you will be beyond the kama, and you have to go beyond the kama to actually achieve the fire of dharma. So अब इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा कि 3, 11 and 7 is actually more hotter than 1, 5 and 9. Basics में सब कुछ है. Strengthen the basics. Okay? So, it is tail of something which is ending, moksha karaka. It is detachment. It is vairagya karaka. What else is Ketu? Ketu is cuts. Ketu is splits. Ketu got split. Ketu got cut. Ketu is abrupt. Abruptly, कोई काम को abruptly हो जाना. Abrupt is basically something which is going in a flow and it stopped suddenly. That is known as abrupt. कोई चीज हो रही थी, अब मैं कहूं कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा था और एकदम से सुवेक्षा जी बीच में सारे गामा पादा निशा गाना शुरू कर दें, कुछ करना शुरू कर दें. सो इफ शी स्टार्ट्स डूइंग इट, दैट इज नॉट सडनली. शी डिडंट इंटरफेयर्ड सडनली, शी इंटरफेयर्ड abruptly because something was going in the flow and she started saregama in the beginning. एकदम से बीच में उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया. So abrupt and suddenly have two different meanings. Sudden is Mars. Abrupt is Ketu.
कोई चीज सडनली हो गई, दैट इज मार्स। कोई चीज एब्रप्टली हुई, दैट इज केतु। एब्रप्ट इज व्हेन समथिंग इज गोइंग इन अ फ्लो एंड इट इज कट। ठीक है, मार्स इज नथिंग वाज गोइंग इन फ्लो, समथिंग immediately happened, something just suddenly happened. It didn't abrupted anything else. उसने किसी चीज को बीच में काटा नहीं, वो अपने आप में कुछ सडनली हुआ। लेकिन केतु किसी चलती चीज को काटता है। अब किसको काटता है? शनि को काटता है, क्योंकि शनि के साथ बैठता है। जब शनि जिस ग्रह के साथ केतु बैठेगा उस ग्रह को एब्रप्टली काट देगा। सबसे पहले कर्म कारका। When the karma karka is cut in abrupt situation, what happens when your karmas are being cut? What happens when your ayush is being cut? Shortening of life could be there. Right? Ayush karka and Ketu is abruptly cutting it. Life was going very well and suddenly Ketu is like, okay, no more. Karma, job was going very well. Work was going very well and Ketu is suddenly like, no, wait, let's abrupt. So this is what Ketu wants to do. Ketu is abrupting your karma because Ketu wants you to attain moksha. Ketu is like, कब तक काम करोगे? क्यों ही काम करोगे? सो ये कहीं ना कहीं मुक्ति का योग है। लेकिन अब मुक्ति शब्द कह दो तो लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी। लोग डरना शुरू हो जाते हैं। It has nothing to do with death. Cutting off karmas could also be detaching you in certain relationships. You could be detached from your mother, you could be detached from your father, you could be detached from your brother, you could be detached from your job. ठीक है, जॉब की जगह है, घर की जगह है. You could be detached from your wife, you could be detached from anybody. That detachment is only detachment of little karmas. You were supposed to do something for somebody, but now you're not doing it. Okay, because it doesn't make any sense to you. So these people want freedom. इनको अपनी ही फ्रीडम चाहिए। ये कर्म के साथ बंधकर काम नहीं कर सकते। खास तौर पर यदि कोई इनको कुछ करने को कहे तब ये वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अपने दिल से ये कुछ भी करें तो ये बड़े खुशी से करते हैं। ओके, इफ दे वांट टू डू इट, दे विल डू इट। The biggest remedy for this particular conjunction, if you are worried about Ayusha, which is lifespan, although I'm giving you disclaimer, lifespan is not just seen by this thing. For lifespan, there are billion other things that you have to see. Okay, but still, little knowledge is dangerous. You might feel fear, right? तो मैं एक remedy बता देता हूँ. Take karmic debts. How will you take karmic debts? कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाने की उसकी उम्र स्टार्ट होने वाली है. Take responsibility of buying a school bag every year for him till he gets his education done. ठीक है, टेक अ कार्मिक डेप्ट. उसको कहो ठीक है मैं तेरे लिए ये कर्म करूंगा. नाउ व्हेन यू डू दिस यू मेक न्यू कर्मास. When you make new karmas, even if the older karmas are being cut or split, the new karmas will be the reason of your living. And these are actually people who should live for others. The day they start living for themselves, cut short of karmas will start happening. But when they start living for others, when they live for you, when they live for kids, when they live for parents, when they live for brothers, when they live for sisters, or any ABC person in the world, the Ayusha will keep expanding. Okay? याद रखना, हनुमान जी की एक कहानी है कि हनुमान जी ने पूंछ इतनी लंबी कर ली थी
कि वो पूंछ को कोई पकड़ नहीं पाया था. That is Ketu. This tale is definitely ending, but this ending can be expanded in so long way that nobody else can reach it. So the planet which is truly out of your reach is Ketu. The planet which is actually infinite is Ketu. And worshipping Lord Hanuman will balance out anything related to Ketu. Any problem to Ketu, go worship Lord Hanuman. And now, because Saturn has moved with Ketu, any problem with Saturn again go to Lord Hanuman. Why? Saturn has promised Lord Hanuman that no matter what happens, if a person is your devotee, I will not do anything to that person. He has some debts which are pending in his own life. जब शनि को लंका से आजाद किया था, आई डोंट नो लोगों को कहानी पता नहीं पता है, बट अगेन बेसिक रामायण स्टोरी. तो हनुमान जी ने जब शनि को आजाद कराया था तो शनि ने प्रॉमिस किया था कि अब से मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, मैं डेप्ट में आ गया, आपके कार्मिक डेप्ट में आ गया. तो एनीबडी रीचिंग यू आउट, आई विल नॉट डू एनीथिंग टू दैट पर्सन. सो यहां तो अब दोनों ही ग्रहों में जो है हमारे पास भगवान शिव के रुद्र रूप हनुमान जी मिल गए. सो वर्शिपिंग हिम इज ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू. Now, because Mars is ruled by Lord Hanuman, if your Mars is spoiled, this will start giving you negative results. So, with this conjunction, no matter what happens, do not spoil your Mars. In fact, strengthen your Mars, worship your Mars. For this, I don't recommend you chanting for Saturn, chanting for Ketu. No, chant for Mars. When you will chant for Mars, this will be balanced out. You don't have to worry about Saturn and Ketu anymore. Okay? Another fact about Saturn and Ketu is that this is two malefics in one house. The house wherever they are present is 80% already destroyed. If one more malefic is there, or aspect of one more malefic is there, that house is gone, completely gone. And why completely gone? Because Ketu wants you to achieve moksha here. Ketu doesn't want to, indulge you into that particular house activity. So one more negative planet is actually good for you here. ऑल्दो मैं फिर कह रहा हूँ कमी तो तुम्हें महसूस होगी. फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस में शनि केतु हो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो, 3 negatives are there, the marriage is destroyed. But the point is, you have to go beyond marriage. To get the best out of this is a Mahayogi. याद रखना, this is Mahayogi yoga. आपको योगी बना देता है उस घर के रिलेटेड. अब अगर 7th हाउस में घटना घट रही है तो 7th हाउस में योगी बनने के लिए शादी से आपको डिटैच होना पड़ेगा, नहीं तो आप योगी कैसे बन पाओगे. सो सैटर्न केतु विल मेक यू योगी. सैटर्न राहु विल मेक यू रोगी. ठीक है, वो महारोगी योग है, ये महायोगी योग है. Although again little knowledge is dangerous, don't just consider one line, there are multiple aspects to it. Okay, now let's understand one more aspect to it. Will Ketu actually do all the things that we are talking about? क्या केतु एक्चुअली आपके कर्म को काटेगा? क्या केतु एक्चुअली आपके आयुष को काटेगा? क्या केतु आपके डेब्ट्स को माइनस करेगा? सी, माइनस ऑफ डेब्ट्स, दीज पीपल यूजुअली डोंट पे फुल डेब्ट्स. सरकार माफ कर देती है यदि सूर्य पावरफुल हो, या 100 years की लाइफ है तो 95 जीते हैं, 5 years के डेब्ट्स माइनस हो जाते हैं. ठीक है, पनिशमेंट माइनस हो जाती है. Oh, you were supposed to suffer for 100 years. Life is nothing but a suffering, right? You can call it anything, but
Eventually, everybody is suffering in their own way. So that sufferings will be deleted by Ketu. Ketu will try to remove that for you. Chronic diseases and Ketu. Ketu will try to split your chronic diseases into multiple times. कोल्ड होगा बार बार होगा, आप महीने बाद उसको फोन करो, महीने बाद भी यार अभी मैं थोड़ा बीमार हूँ, गला नहीं ठीक था, यार तू बीमार ही रहता है, तो ठीक नहीं होता। तो सैटर्न केतु यूजुअली ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एब्रप्टली बार बार काट 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 के सफरिंग्स मिलती है उनको, काट 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 के पनिशमेंट्स मिलती है उनको, काट 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 के डेब्ट्स मिलते हैं उनको। नथिंग हैपन्स इन वन गो, everything happens in multiple goes. I don't know if you would choose multiple time sufferings or just suffering for one time. So झटका और हलाल का जो डिफरेंस है वो अब आपको चूज करना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट विल दिस एक्चुअली हैपन, दैट विल डिपेंड ऑन द डिग्री। 0 degree, 30 degree. This is the degree of a normal house. One house is equal to 30 degrees. Okay. Let's suppose Saturn is here at 13 degrees. Now Saturn is a very slow moving planet and Ketu is faster moving planet in comparison to the Saturn. Saturn will take 2.5 years, if retrograde around 3 years, to move from one sign to another. And Ketu, which is always retrograde, will take 18 months, that is 1.5 years to complete one sign. And because Ketu is always in the retrograde motion, we need to understand Ketu किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। शनि जा रहा है 13 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ और केतु जा रहा है 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ। If the Ketu is ahead from the Saturn, these things will definitely happen. For example, Ketu is here at 18 degrees. Now Ketu is 5 degrees away from the Saturn, moving towards the Saturn. And because Ketu is a faster moving planet, it will reach Saturn before Saturn could escape him. Even if the Saturn is retrograde, he will not be able to escape him because Saturn retro will still be slower than the faster Ketu on the other side. So if the Ketu has not left the Saturn yet, उससे पार नहीं हुआ है, दो तरह की कंजंक्शन बनेगी यहां पे। एक कंजंक्शन बनेगी कि केतु यहां पर है 8 डिग्रीज पर, यह भी 5 डिग्री डिफरेंस है, ठीक है, ये भी 5 डिग्री डिफरेंस है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, केतु इज मूविंग टुवर्ड्स 0 डिग्री, केतु इज स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम सैटर्न। एंड व्हेन यू विल मैच्योर, व्हाट्स द मैच्योरिटी एज ऑफ केतु? सो केतु विल प्रोग्रेस आफ्टर 18 years. So around the age of 18, the Ketu would have matured and left this house, left the results from Saturn. He'll not care about Saturn anymore. But if the Ketu is ahead from the Saturn and moving towards the Saturn, these results will come true. So राहु और केतु के केस में छोटी छोटी चीजें बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम आगे राहु गुरु पढ़ेंगे तो मैं आपको और बेटर इस चीज को समझा पाऊंगा। But remember, both of them is 5 degree difference. But the 5 degree difference is going to make a totally different results. कहने को कंजंक्शन दोनों तरफ है, लेकिन ज्यादा रिजल्ट्स किसके हैं? When Ketu is moving towards the Saturn. If the Ketu has left the Saturn, that means Ketu is saying, I have no business with your karma, I have no business with your Ayusha. I already did that. That means in last life you got all the chances of that, which you missed. And in this life, you will have realization of it. And here Ketu will give you responsibilities. Responsibility is also Saturn. So Ketu will give you hidden responsibilities here. आप बिना किसी को बताए किसी के लिए कुछ कर रहे होगे। आपकी लाइफ में छोटे छोटे हिडन कर्मास होंगे।
ठीक है, इस केस में हिडन नहीं होंगे, इस केस में जो होगा वो सामने दिख जाएगा, लेकिन इस केस में हिडन कार्मास रहेंगे। क्यों? नाड़ी ज्योतिष कहता है जिस ग्रह के ऊपर से कोई ग्रह गुजर कर आता है उस ग्रह से चीजें सीख कर आ जाता है, उसके ट्रेड्स वो लर्न कर लेता है। अब ये केतु शनि को सीख कर आया है। शनि को सीखने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख कर आया है, डेप्थ सीख कर आया है, ठीक है, कोल्डनेस, हार्शनेस, वर्किंग अंडर प्रेशर सीख कर आया है, डूइंग समथिंग फॉर अदर्स सीख कर आया है। अब क्योंकि केतु सीख कर आया है, ये सब सीख लिया है, लेकिन वो उसको अप्लाई करेगा साइलेंस में, अंडरग्राउंड रहकर, हिडन रहकर। राहु सीख कर आया होता तो सारी दुनिया को बता देता कि मैंने इसके लिए वो कर दिया, उसके लिए वो कर दिया, उसके नाम लगवाएगा वो बड़े बड़े। So this is basic lesson of Saturn plus Ketu. I'll not go in the houses. That's not really needed. But core concept of Saturn plus Ketu is this. And I hope this was interesting. अगर आपको ये समझ में आया है, there are multiple other things to it. I can go into that as well, but I think this is more than enough for today. And this was more than interesting for today. If you have any questions, you can definitely go ahead. हाँ जी समृद्ध जी। सर डिफरेंशिएट में एक पॉइंट शायद रहेगा कि सैटर्न इज डिले एंड केतु इज डिनायल। केतु इज नेवर डिनायल। सर पर डिटैच होते हैं ना हम उस चीज से। डिनायल एंड डिटैच आर टू डिफरेंट वर्ड्स। डिनायल इज मिलेगा नहीं, केतु इज मिला हुआ है, तुम्हें चाहिए ही नहीं, तुम डिटैच्ड हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लिविंग इन द सेम हाउस and being detached from the people living in it is Ketu. Living in a house with nobody is denial. Yes, sir. So Ketu is not a denial. Ketu will never deny anything. याद रख लेना सर. In fact, Ketu will help you get the things easier. Why? Because you have already experienced that in past life. You have mastered it in past life. Yes, sir. Again, Ketu in 5th house. It is really easy for them to get an affair. Why? Because they know how to get somebody loved. They have mastered that skill in the past life. But they will still choose to be detached from it. They'll say, ठीक है यार, आता है अब करना नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, so that is detachment, that is not denial. Another thing about Saturn, Saturn is also not a denial. Saturn is delay. Delay and denial are two different things. आपने कहा सैटर्न इज डिले, सैटर्न इज 100% डिले। शनि लेट है लेकिन प्रॉमिस्ड है। दूसरी चीज, शनि सिर्फ प्रॉमिस्ड ही नहीं है, शनि विद इंटरेस्ट है। शनि कहता है मैंने तेरे को 10th हाउस के रिलेटेड बहुत तंग कर लिया 35-36 की एज तक, लेकिन अब जब मैं दूंगा मैं विद इंटरेस्ट दूंगा। शनि का हिसाब क्लियर है। शनि कहता है 5, अब वो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उससे 5% इंटरेस्ट निकलवा सकते हो, 10% निकलवा सकते हो, 100% निकलवा सकते हो। दैट विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बट सैटर्न विल ऑलवेज कम टू यू विद अ डिले बट विद इंटरेस्ट। ही विल कंपनसेट, ही विल गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा। ही विल से 10th हाउस सिर्फ काम कार होता है, मैं तेरे को साथ में रेपुटेशन भी दे देता हूं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में है, अब वो इंटरेस्ट देगा। ही विल ट्राई टू मेक अप फॉर यू। आई होप यू गॉट इट। यस सर। सर एंड वन मोर क्वेश्चन कि जब सेम हाउस में कंजंक्ट ना हो तो कौन से हाउस का कंजंक्शन लेना चाहिए, मतलब कार्डिनल क्रॉस हो या फिर एस्पेक्ट का हुआ? तो मैंने एक लाइन बोली थी लास्ट लेसन में भी शायद, या शायद लास्ट लेसन में ही, देयर इज नोन समथिंग नोन एज हायरार्की ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की क्वालिटी क्या है? The superior quality conjunction is in the same house within a close degree. ठीक है, then it is in the same house with a middle degree, then it is in the same house with a far degree. Okay, then it is 159, then it is aspect, and at the end it will be cardinal cross. Cardinal cross has to be taken at the end. सर बट इन विच हाउस, मतलब अभी अलग अलग इसमें तो कौन सा हाउस हम कंसीडर करेंगे? हाउस मतलब फॉर एग्जांपल सैटर्न इज इन 6th हाउस, केतु इज इन 8th हाउस, तो कौन से हाउस में वो कंजंक्शन कंसीडर होगा? किसी हाउस में नहीं होगा, किसी हाउस में नहीं होगा। That will not truly happen in a house.
ठीक है, तो अब फिर कौन आपने सी 6 चीज? और 8 बोला, अब ये कंजंक्शन 6 और 8 में एक्चुअली घटित हो रहा है 12th हाउस में, बिकॉज सैटर्न इज लुकिंग एट द 12th, केतु इज ऑल्सो लुकिंग एट द 12th। हम्म, ठीक है, तो अब ये जो कंजंक्शन हो गया ये एक्चुअली कॉज हो रहा है 12th में। ठीक है, सो अगेन बेसिक्स में सब कुछ है। अब मैंने आपने बोला मैंने 2 सेकंड में कंजंक्शन निकाला, वो वहाँ वहाँ वो निकल गया, राइट? सो यू हैव टू फिगर आउट कि हो कहाँ रहा है। ठीक है, वो okay, अलग got अलग it. केसेस में अलग अलग जगह पर होगा। Yes, sir. हाँ जी मंजू जी। So if sun is expecting, then also it will be considered as malefic aspect. सन इज अ क्रूएल प्लैनेट, Hmm. सन इज नॉट अ वेरी गुड प्लैनेट, बट व्हेन सन इज लुकिंग एट केतु ही बिकम्स अ सौम्य फॉर केतु। सिर्फ केतु के लिए सूर्य सौम्य हो जाते हैं, Even if Ketu is with Saturn. डजंट मैटर। Okay, so one more question, please. Does this yoga causes inconsistency? Definitely. Why? Because Saturn is your work, Ketu is breaks. So you will not be able to work all together. You'll be working in breaks. So consistency के लिए you will need Saturn plus Rahu. That is obsession. You'll keep working, keep working, keep working. Okay. And Saturn plus Ketu is not obsession. That is कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आलसी बनाता है ये। आलस का भी योग जो है वो शनि केतु में देखा जाता है। बिकॉज सैटर्न वॉन्ट्स टू वर्क, केतु इज लाइक क्या ही करना है, क्यों ही करना है, जरूरत नहीं है। So again, remedy is worshipping Mars. डेफिनेटली improve your Mars and this conjunction will give you better results. Okay, thank you so much, sir. Good luck. हाँ जी स्मिता जी। So Ketu in Navamsha in 4th house means abrupt death, Why? because in Navamsha 4th house we see for death only. No. That is not how it works. But because this video is going to be on a public portal soon, I'll not discuss death and death related things. But if you want me to answer it in one line, we don't see it the way you are telling me to see it. Okay. ठीक है, ऐसे नहीं देखते हैं। Okay. So 4th house would be mother, motherland. Fourth it's like house that. Saturn Ketu will give you diseases related to Saturn Ketu. In Navmansha. D9 chart, 4th house, any planet will give you disease. That planet will give you troubles no matter what happens. Okay, so Saturn related troubles will be there, back pain, joints pain, arthritis. Okay, Ketu related problems will be there, surgeries, cuts, bruises. Now, this doesn't really have to be on a physical plane. The cuts could happen in the material world, the cuts could happen in emotional world. Okay, back pain could happen in the emotional world as well. What is back pain in emotional world? Go decode it. But it is there. Arthritis is also there in emotional world, in material world. Decode it. Yeah. Okay. Got Okay, it? sir. Thank you. हाँ जी यश जी। Yes, I was just a little curious that if in a house Saturn and Ketu are together as a conjunction, and then Saturn and Ketu are in the same trine, and Saturn aspecting Ketu with his aspect, third or 10, are they going to be the same, giving the same result? Give me a chart. You can, I have a Saturn aspecting Ketu. Yeah, just If give you me want. example. Example दो ना, क्या Yeah. मैं को हवा में it's better मैं समझ लूंगा, बाकी लोगों को क्वेश्चन रह जाएगा। Okay, so my Saturn is in 8th house, Okay, and Ketu is in 5th house. okay. So it's aspecting with its 10th aspect to the Ketu. Now, when Saturn and Ketu in the same house, and Saturn and Ketu in a trine, and Saturn in this case aspecting Ketu, are going to give same result or No, different result no. or different intensity result? Not the same results. The results will depend on multiple factors. First of all, third drishti, 10th drishti have multiple different meanings. Now, because Saturn is looking with the 10th aspect, his 10th aspect is all about karma. Okay, and his karmic karmas are going on the Ketu. Ketu will destroy the karmas related to the 5th house here. Okay. Okay, so you will have the troubles related to
5th house Saturn Ketu Okay. in terms of karmas. So the karmas will be split, cut short of the 5th house. ठीक है. अब Is अगर it ये the थर्ड karma? एस्पेक्ट होता, अगर Yeah. ये थर्ड होता, लेट सपोज यहाँ होता, Okay. तो क्या आना था बताइए. तो सबसे पहले तो 4th हाउस वुड बी गॉन बिकॉज इट इज ट्राइंगल एंड इट इज दृष्टि. Okay. पहले तो 4th हाउस में शनि केतु का पूरा एफ्लिक्शन आता. ठीक है. Right. इसके अलावा 2nd हाउस पे शनि केतु का पूरा एफ्लिक्शन आता. Okay. ठीक है. अब सैटर्न यहाँ थर्ड करेगा, अब ये 10th हाउस को करेगा, लेकिन ये थर्ड दृष्टि है. थर्ड दृष्टि इज अबाउट एफर्ट्स. So the efforts Right. related to the 10th house will be gone. You won't like to put efforts for the 10th house. So due to Okay. your own less efforts, your karmas will be less. Right. ठीक है. So यहाँ पर हम कहेंगे भैया मेहनत करनी पड़ेगी. You will have to मेहनत करोगे तो तर जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं तरोगे. Okay. ठीक है. So वहाँ पर थर्ड दृष्टि के कारण चेंज हो गया सारा एस्पेक्ट. Okay. Got it? Thank you. हाँ Thank जी you. रोहन जी. अगर जुपिटर भी इन्वॉल्व हो इस कंजंक्शन के साथ ट्राइन में या एस्पेक्ट कर रहा हो या सर कंजंक्शन. मैं अभी ना 3 प्लैनेट्स इन्वॉल्व अच्छा. नहीं करना चाहता. ओके सर. अगर मैं ऐसे तो सन हो, मरकरी हो, there are multiple other possibilities to it, but I'll not add any more planet for now because taking 3 planet conjunction is a totally different way. अब लिटिल नॉलेज विल बी डेंजरस. जैसे मैं 2 वे कंजंक्शन करा रहा हूँ, ऐसे 3 वे कंजंक्शन नहीं बना लेनी. ओके. ठीक है. कि आप ऐसे तीसरा प्लैनेट साथ में ले लो, अच्छा साथ में सूरज भी आ गया जी, सूरज ये होता है, तो फिर आप मैचिंग नहीं कर पाओगे, वो मिसमैच हो जाएगा और वो इवेंचुअली आपको गलत रिजल्ट भी देगा और उसकी रेमेडीज आपके ऊपर भारी भी पड़ जाएंगी. सो 3 प्लैनेटरी कंजंक्शन इज टेकन इन अ टोटली डिफरेंट वे. 4 planetary conjunction is also taken in a totally different way, and 5 planetary conjunction is next level thing to understand. ठीक है. Okay. तो हम करेंगे जब कभी 3 planetary में, तो you'll get to know how to consider a third planet and how it plays the role. Sir, can you please elaborate trine connection? Sir, trine is 159, so इसका ये जो है 9th हाउस बन रहा है सैटर्न से और ये केतु है. सो शनि और केतु का पूरा एफ्लिक्शन 4th हाउस में आ गया. तो इस केस में मदर विल बी हैविंग आर्थराइटिस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सैटर्न, और दिस पर्सन माइट लीव द हाउस एंड गो अब्रॉड बिकॉज karmas फॉर अब्रॉड आर बीइंग एक्टिवेटेड बाय राहु हियर. ठीक है. Saturn in 8th and Ketu in 12th. Yeah, so that is same thing. Again, 4th house will be gone. Mother, happiness, vehicles, vehicle accident. Those things are possible. हाँ जी समरज जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन वी आर डन. सर और ऐसा भी है ना कि सैटर्न केतु वाले के कर्स लग जाते हैं, मतलब उन्होंने कुछ बोल दिया किसी को तो कर्स उन्हें लग जाएगा. क्यों? सर ऐसा सुना है इसीलिए. कहाँ से सुना है? ऐसे ही यूट्यूब पे. सर रील्स आती हैं बहुत इस पे. हाँ, सैटर्न केतु बहुत फेमस है इस चीज के लिए, ऐसे सुना है. चल अच्छी बात है, फेमस है तो याद रखना, जब तक मार्स का 2nd हाउस में केतु के साथ कोई एफ्लिक्शन नहीं बनता है तब तक आपका कहा हुआ बुरा किसी को लग नहीं सकता. मार्स प्लस केतु इन द 2nd, आपकी जुबान से निकले हुए नेगेटिव वर्ड दूसरे के लिए सही हो जाएंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे. और इसका एक दूसरा पहलू भी है. ऐसे अगर किसी के कहने से कुछ होता तो सबसे पहले बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ऐसे लोगों को हायर कर लेते और दूसरी पार्टी के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बुलवाते कि वो दूसरी पार्टी हार जाए. तो ऐसा नहीं होता है. जब तक तुम्हारे ग्रह वो चीज़ अलाउ नहीं करते तब तक वो चीज़ तुम्हारे साथ घटित नहीं हो सकती. ठीक है. यदि मेरे ग्रह कोई ABC चीज़ अलाउ नहीं करते हैं और आप लाख मेरे को कह लो तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तब तक घटित नहीं होगा जब तक मेरे प्लैनेट्स उसे अलाउ नहीं कर रहे. ठीक है. अगर मेरे प्लैनेट्स अलाउ कर रहे हैं तो उसके बिना बोले भी घटित हो जाएगा. उसका बोलना ना बोलना मैटर नहीं करता. ठीक है. तो किसी भी ह्यूमेन फोर्स में
इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपके प्लैनेट्स को उलट पुलट कर सके। ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर में है, ना ही किसी और एबीसी में है। हाँ, कोई बियॉन्ड ह्यूमन जा चुका है, तो वो कोई लेवल अचीव कर चुका है, तो ही कैन कर्स यू, और ही कैन, जब कर्स, ऋषि श्राप देते थे, ऋषियों के श्राप लगते थे। अब ऋषि श्राप देते थे तो जल रखते थे अपने साथ, और वो जल उसके ऊपर फेंक कर श्राप, और जल ही उसके ऊपर फेंक कर वरदान भी देते थे। तो याद रख लेना, अभिशाप लगने के लिए चंद्र का प्रेजेंस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, विदाउट मून यू कैन नॉट बी कर्स्ड। मून इज द फर्स्ट प्लैनेट टू गॉट गेट कर्स्ड। लांछन सबसे पहले चंद्र पर लगा था, चंद्र सबसे पहले कर्स हुए थे, जा तेरी रोशनी खत्म हो जाएगी। और उसकी रोशनी खत्म हुई। फिर वो भगवान भोलेनाथ के पास गया, तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं किसी का दिया श्राप नहीं वापस ले सकता, लेकिन मैं तुझे एक नया वरदान दे सकता हूं। जब जब तेरी रोशनी कम होगी, मेरी वरदान से तेरी रोशनी दोबारा से पूरी हो जाएगी। बीच में से नहीं पूरी कर पाऊंगा मैं, पहले पूरी तरह से तुझे खत्म होना पड़ेगा, पर जब तू पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब मेरा वरदान तुझ पर काम करेगा। और जब मेरा वरदान पूरा हो जाएगा, जब तू पूरी रोशनी का हो जाएगा, तो फिर उसका अभिशाप तेरे पर काम करेगा, तो दोबारा रोशनी खोएगा। तो वेनिंग मून एंड वैक्सिंग मून बने। तो अभिशाप आपको तब तक नहीं लग सकता जब तक तुम्हारे ग्रह उसे अलाउ नहीं करते। ये बात को याद रख लेना। मैं हमेशा कहता हूं, चोरी उसी के घर होगी जिसके घर पे चोर उसी के घर आएगा जिसके घर चोरी होनी है। चोर उसके घर नहीं आएगा जिसके घर चोरी नहीं होनी है। तुम्हारे प्लैनेट्स कोलाइड करेंगे तो हो जाएगा। मर्डर उसी का होगा जिसको मर्डरर मिलेगा, मर्डरर भी उसी को मिलेगा जिसका मर्डर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी बीच में किसी ने बोल दिया और वो हो गया। ऐसे तो कोई मेरे को श्राप दे दे, जा तेरे को कसिनो में $5 बिलियन जीत जाएगा तू, तो किसी के कहने से थोड़ी मैं $5 बिलियन जीत जाऊंगा। तो हमें इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जब मैं पढ़ाता हूँ या जब मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, तो मैं एक वर्ड उसमें मेंशन किया है, और कॉमन सेंस। सो कॉमन सेंस इज वेरी मच नीडेड इन एवरीथिंग, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। गॉट इट? यस हाँ, सर। तुम्हारे कहने से हो जाएगा। You start cursing one of your planet, that planet will start giving you bad results, no matter how good that planet is. You have exalted Moon, you have exalted Venus, you have exalted Mars, best to best planet, and you start cursing it for 15 days, 16th day you will start seeing the result of negativity. तुम्हारे कर्स करने से हो जाएगा। तुम खाना छोड़ दोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तुम एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन तुम्हारे करने से होगा, किसी के करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? सो श्राप उसी को लगता है जो उस श्राप को सुनकर फिर वो खुद उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, उसने बोला है, अब वो चीज आपके सबकॉन्शियस में घूम रही है। अब क्योंकि सबकॉन्शियस में घूम रही है, वो फलित होनी शुरू हो जाती है। तो एक बुक है बड़ी जबरदस्त, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रीड इट। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट द आंसर। यस सर। एंड कभी कभी मतलब दो एस्ट्रोलॉजर्स के ओपिनियंस पूरे मतलब कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब कोई सर, बोलता है वीनस की तो अच्छा है, मेरा कोई बोलता है ही नहीं। मेरा ही ओपिनियन एक कंसल्टेशन में बड़ा अच्छा हो सकता है उसी चीज को लेके, दूसरी कंसल्टेशन में उसी चीज को लेके मेरा अपना ओपिनियन चेंज हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले, हर प्लैनेट अच्छा भी है, हर प्लैनेट बुरा भी है। आपकी आंख कब किस समय किस चीज को पकड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कुंडली को एक लाइफ टाइम में भी एक ही कुंडली को तुम रीड नहीं कर सकते। एक ही कुंडली पढ़नी हो ना, एक जन्म से ज्यादा का वक्त चाहिए सिर्फ एक कुंडली पढ़ने में। तो जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उसके पास पूरा जन्म नहीं है आपके ऊपर एफर्ट लगाने के लिए। वो उसी चीज को पकड़ेगा जो वो फटाफट पकड़ पाएगा, प्लस उस समय के ट्रांजिट्स भी उससे वही पकड़वाएंगे जो वो पकड़वाना चाहते हैं। तुम ज्योतिष के पास भी ऐसे ही नहीं पहुंचते। विदाउट द प्लैनेटरी
position, without the planetary support, you will not reach a hospital, you will not reach an astrologer, you will not reach the right place at right time. If your planets want you to reach, you will reach. And then you'll be like, अरे यार मेरे मैं ना उससे मिला, उसने मेरे को बोला ये कर ले, तो मैंने ये कर लिया, तो मेरा काम हो गया. वो भी भगवान की मर्जी से ही हुआ है, वो भी आप ही के ग्रहों ने कराया है. आप वहां भी अगर पहुंचे हो तो उसी की मर्जी से पहुंचे हो. उसकी मर्जी के बिना तुम नहीं पहुंच सकते. भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता. सो करंट ट्रांजिट्स को लेकर के ही बताया जा सकता है. इट इज जस्ट लाइक एक कार है. ये कार है, इसकी आगे 2 हेडलाइट्स हैं. अब ये हेडलाइट की एक रेंज है, ये सिर्फ 40 मीटर देख सकती है. अब आप कहो कि मेरे को 40 मीटर जाना ही नहीं है, मेरे को तो 500 किलोमीटर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? बट यू हैव टू गो 40 मीटर्स एट वन टाइम एंड देन अनदर 40 मीटर. जैसे जैसे आपकी कार आगे जाती है वैसे वैसे आपकी सड़क आपको दिखती जाती है. सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट एन एस्ट्रोलॉजर टू टेल यू सम घटना विच इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 15 years. In 15 years, do you know how many transits are going to happen? How many progressions are going to happen? How much of your own karmas are going to change the things for you? ठीक है, मैं कहता हूं तुम्हारे पास करोड़पति बनने का योग है, तुम कल किसी का मर्डर कर देते हो और पुलिस स्टेशन चले जाते हो, तुम्हारी सारी लाइफ स्पॉइल हो जाती है. एंड देन डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स कुड सी डिफरेंट थिंग्स. उनकी आंख क्या पकड़ रही है? अब जस्ट लाइक चेस. अब आप कहोगे सर आप जितनी बार चेस खेलते हो आप अलग मूव करते हो. यार हर बार मेरी आंखों को अलग मूव दिखती है. इवन व्हेन यू प्ले चेस, यू प्ले अ डिफरेंट चेस एवरी टाइम. सो व्हेन यू लुक एट अ चार्ट, यू विल सी अ डिफरेंट थिंग एवरी टाइम. यू विल नेवर सी द सेम थिंग ऑलवेज. इट इज इम्पॉसिबल टू सी द सेम थिंग ऑलवेज. ठीक है. एंड देन देर इज डेफिनेटली हायरार्की ऑफ कैपेबिलिटी. कोई अभी प्लैनेट्स पर फंसा है, कोई अभी हाउसेस पर फंसा है, कोई अभी राशिस पर फंसा है, कोई थोड़ा आगे जा चुका है, 2 4 5 डिविजनल चार्ट पढ़ने आ गए उसको, किसी को 2 3 तरह की दशाएं आ गई, किसी को थोड़े से प्रोग्रेशन पढ़ने आ गए, ट्रांजिट्स पढ़ने आ गए. तो कैपेबिलिटी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर मैटर्स हियर. किसको क्या आता है उसकी आंख वही पकड़ेगी. अब जो मेरी आज आंख पकड़ती है वो आंख मेरे गुरु की नहीं पकड़ती. मेरे गुरु की आंख जो चीज पकड़ती है मैं आज सोच भी नहीं सकता. समझ रहे हो? जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था इस चीज को, जब मैंने शुरू किया था, तो आज जो चीजें मेरी आंख पकड़ती हैं वो चीजें कभी नहीं पकड़ पा रही थी. तब मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें पढ़ता था. तब मेरे को भी हाउसेज नए नए आए थे तो मैं पढ़ता था, अरे फर्स्ट हाउस हेल्थ होती है, फर्स्ट हाउस में एरीज आएगा तो हेल्थ बड़ी तेज जाएगी. क्यों? क्योंकि मैंने तब नया नया पढ़ा था. फिर मुझे पता लगा एरीज की नवमाश होती है, वो नवमाश की आगे डिविजन्स होती हैं, फिर एरीज का एक अलग दशा सिस्टम होता है. ठीक है, एरीज एंड मंडूक दशा इज द सेम थिंग. तो when you get to know more and more and more and more, your mind starts to see a different and complex things. So every astrologer opinion will be different. मेरा ही चार्ट मेरे पिताजी पढ़ें और मेरी माताजी पढ़ें, both of them are very good astrologers, but they will be reading it in a totally different way, and when I will read it I will come up with a totally different opinion. But there is nothing wrong and nothing right. इट इज जस्ट आपकी आंख किस चीज को पकड़ रही है. उनकी आंख अलग चीज को पकड़ती है, मेरी आंख अलग चीज को पकड़ती है. ठीक है. और ये एक चीज और याद रखना, ज्यादा आंखें नहीं पकड़वानी चाहिए. द मोर, इफ यू वांट टू टेक द रॉन्ग डिसीजन, टेक मोर ओपिनियंस. ठीक है. डॉक्टर एक होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर एक होना चाहिए, एडवोकेट एक होना चाहिए, सीए एक होना चाहिए. अगर आपके 100 डॉक्टर होंगे, वो 100 ऑपरेशन हो जाएंगे तो शरीर का कुछ नहीं रहेगा. ठीक है. 100 एडवोकेट होंगे तो हर एडवोकेट आपस में ही लड़ता रहेगा, तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपको. 100 सीए होंगे तो हर साल टैक्स में प्रॉब्लम आएगी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. 100 एस्ट्रोलॉजर होंगे, चार्ट खत्म हो चुका होगा, कोई कुछ बहा चुका होगा, कोई कुछ दफना चुका होगा. तो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, मैं पहले ही कह देता हूँ, सर कुछ जला के, दफना के, बहा के, कुएं में गिरा के आए हो, मेरे पास मत आओ. I'll be of no help. You spoiled your planets for 4 years, come after 4 years. ठीक है ना. I give my clients cleansing time. कि सर हमने 100 एस्ट्रोलॉजर से दिखा लिया, ये रेमेडी भी कर ली, ये रेमेडी भी कर ली, ये रेमेडी भी कर ली. Now don't do any remedy for 6 months, then talk to me. ठीक है. So
बड़े सारे ओपिनियंस हैं इस चीज़ के ऊपर। मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, जो ऑलरेडी मेरे को लग रहा है लॉन्ग हो गया। सो एनी अदर क्वेश्चन? मतलब ऐसे कंसल्टेशन में नहीं, सिर्फ फैक्ट्स में भी करते हैं मतलब? आपने जैसे वीनस केतु का बताया मैंने था, तो कहा फैक्ट फैक्ट्स पूरा ही करेंगे, अलग होता है? बिल्कुल करेंगे। उसकी नॉलेज का जो लेवल है वो उस लेवल पे बात करेगा, मेरी का जो है मैं उस पे करूंगा, जो मेरे गुरु हैं वो उस पे करेंगे। इवोल्यूशन है, दिस इज अ नेवर एंडिंग साइंस, Yes, यू sir. कैनॉट कंप्लीट इट। अभी मैंने आपको सैटर्न केतु पढ़ाया, अब आप वो बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने पढ़ा दिया, अब आपके वो ओपिनियन सेट हो गए, ठीक है। लेकिन यही सैटर्न केतु को मैंने 8 महीने 10 महीने सिर्फ एक कंजंक्शन को पढ़ा है, आपने 40 मिनट पढ़ा है। अब एक कंजंक्शन को आपने 40 मिनट में समझा है, मैंने 40 महीनों में समझा है, तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा। और जिन मेरे गुरु ने पढ़ा है उन्होंने शायद 400 महीने में समझा है, उनके पास और भंडार होगा। सो अमाउंट ऑफ थिंग जिसके पास जो है वो उसको आगे प्रकट कर रहा है। और हमारी ये बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम सोसाइटी में। आई हैव सीन पीपल मिसलीडिंग थिंग्स। इनफैक्ट वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, आई विल नॉट टेक द नेम, very good, very famous astrologers on YouTube. I commented on one video very recently on that post. The video is gone now. ठीक है, मैंने वो पूरा ही मिसलीडिंग था, एंड दैट वीडियो वाज हैविंग आई गेस 3-4 लाख व्यू थे उस पर, बट दैट वाज सो मिसलीडिंग। सो अगेन, मैं भरा हुआ घड़ा राइट मटेरियल से भरा हो तभी उस घड़े की वैल्यू है। वही भरा हुआ घड़ा यदि नेगेटिव चीज़ों से भरा है तो वो घड़े की कोई वैल्यू नहीं है। सो मैं अब नॉलेज को क्यों दे रहा हूं यहाँ फ्री में? सो दैट यू गाइस कैन स्प्रेड द राइट थिंग्स। ठीक है, हमारे शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें राइट चीज़ को आगे बताना है, तो इसको आगे बताओ, एक्सपैंड इट, टेल मोर पीपल अबाउट इट। और ये खत्म हो जाएगी साइंस, ये कोई बहुत लंबी गेम नहीं है। ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। बहुत लंबी गेम नहीं है। आई थिंक आवर जनरेशन एंड मे बी जस्ट हमसे नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद नथिंग। सो यू शुड प्रिजर्व इट। हाँ जी, यश जी। Yes, just out of the curiosity, I think we started talking about the speeches becoming true when someone is saying something. So I have seen a chart of a lady, and her family members actually call her Sadhuma. So, because whatever she says becomes true. So what I have seen, that her chart has Rahu in the 2nd house, and 8th house has Mars, Ketu, and Venus. And she also claims, like, whenever she seriously talks about something, it becomes true, or it happens. प्लीज टेल So हर, is there any link? The question Please, is basically, प्लीज is there any link रिक्वेस्ट, of that मैं Mars कह Ketu you talked about? रहा हूँ, रिक्वेस्ट हर टू रीड वन लेटर फॉर मी। आई विल टाइप द लेटर एंड सेंड इट टू यू। जस्ट टेल हर टू Yes. रीड दैट लेटर फॉर मी एंड we'll see if that things happen. I'll be of course writing the good things. Okay. So see, again, there is a difference between astrological world and spiritual world. Somebody can be on a very higher spiritual level, and on the Okay. remember, the people which are on a spiritual level, these things doesn't work on them. Okay. एस्ट्रोलॉजी को साइड पे रख दो। मैं पहले ही कहता हूँ, Okay. एस्ट्रोलॉजर के पास वो इंसान आता है जो अभी परमात्मा को नहीं जानता है। जो Okay. परमात्मा को जानता है उसे ज्योतिष के पास आने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट लाइक यू नो द PM, बट यू आर स्टिल गोइंग टू योर लोकल MLA to get your job done, to ask for certain things, but you know PM very well. Would you do that? बेवकूफ हो गए तुम अगर ये करोगे। If you know PM directly, you will not even see the MLA office. The MLA won't even be, that person will be nothing to you. Right. तुम्हें कोई काम होगा, तुम एक फोन करोगे, ये MLA ऑफिस बैठा था, एक काम कराना है, ये कर दो यार। That is when you know PM. Right. So if you know PM, leave this science. It has nothing to do. Okay. So if you are spiritual enough, if you are really
that close to God, Right. then you don't need to worry about this thing. Okay. But if you are a bit away from him, then he'll be like, अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता. There are things which I can arrange for you. So astrology is nothing but an arrangement of God only, कि God अभी directly नहीं उनसे मिल सकता. अब अगर God directly मिल जाएगा तो फिर तुम्हारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी. ठीक है ना? क्योंकि फिर तुम मटीरियलिज्म में नहीं रहोगे, फिर तुम साधु बन जाओगे. लेकिन अभी तुम साधु नहीं बन सकते, ना ही बनना चाहते हो. तो जब तक तुम साधु नहीं बनना चाहते, तब तक ग्रहों का एक अरेंजमेंट है जिसकी आप मदद लेकर के जो तुम करना चाहते हो, जैसे तुम करना चाहते हो, वैसे वो चीजें घटित हो सकती हैं. लेकिन एक दिन आपको भगवान की ये चालबाजी समझ में आएगी कि ये ग्रह नक्षत्र ये कैसे उसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं. एंड दैट डे यू विल बी लाइक, आई डोंट वांट टू मीट दिस, आई वांट टू मीट द क्रिएटर नाउ. आई वांट टू नो ये सूर्य बनाया किसने है. व्हाई सन इज गिविंग मी these effects, I want to know that guy. So when you will go beyond this science, you'll be a different person. True. And most astrologers who are very good astrologers, they don't see their own charts. They are beyond it now. They have seen enough of it that everything is Right. melodrama to them now. True. So, Thank you. Chala. I hope this lesson gave you guys some enlightenment. And stay blessed. See you guys very soon in some other lesson. Bye bye. Even I don't see my own chart. Good luck. Bye bye. Thank you, sir.